लेंगे तो आप खो जाएंगे और अपनी बाहें फैलाकर वो आपको बुला रही है, लेकिन याद रखिए एक बार आप उसके नशे में खो गए तो यू कम आउट एट योर ओन रिस्क। और उसके खूबसूरत मैसेंजर्स जिसमें डाकिनी के कई सारे राज हैं, यानी कि ये ब्यूटीफुल चमगादड़्स बड़ी लंबी उड़ान तय करके आए हैं खास आपका स्वागत करने के लिए। लंबी उड़ान से याद आया, लंबी उड़ान तो हमारी शिमारू फैमिली ने ली है एज द शिमारू ब्रॉडकास्टिंग नेट। व्हाट अ विजनरी। Hello. Thank you. A very good evening to all of you. I'm sorry for a little bit of a delay. I think थोड़ा सा बॉम्बे का ट्रैफिक में हो ही जाता है, मुंबई के ट्रैफिक में. First of all, a very, very warm welcome to all our friends from the media and the press for this event, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए बहुत important event है, and we will talk about it as we go along. लेकिन before we start, I think ये event हमारे लिए दो चीज़ के लिए important है. एक तो जो शो लॉन्च हो रहा है, बट और भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि as we are speaking, we are celebrating the 60th year of Shimaru in India. So we are 60 years young as we are speaking right now. तो I think ये बहुत ही important एक event है कि हमारा शिमारू उमंग चैनल का सेकंड ओरिजिनल हिंदी GEC शो आज हम लॉन्च करने के लिए आए हैं. So we are all very, very excited about it. Not just about the show, but also the fact that it is coming from the same Rashmi Sharma Productions, which has done a fantastic job with us in the first show that we have launched, किस्मत की लकीरों से, जो कि बहुत ही अच्छा successful show रहा. So thank you, ma'am, for the show, and I hope and pray that the next show, जो ये डाकिनी वाला शो है, ये भी उतना ही अच्छा हमारे लिए करेगा. So thank you all for coming here, and I hope you enjoy the proceedings as we go along. Have a good evening and have a good time with all of us. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Let's hear it for Orgo Chakrabarti. Wow, what a milestone celebration. 60 years. बुरा मान जाएंगे हमारे चमगादड़. Over to you, Sandeep. Thank you. A small correction, not CEO, COO broadcasting. I'm so sorry, it is COO. I got a little scared of this one and that came out wrong. COO Not a Broadcast problem, Business, Shimaru Entertainment. I beg your pardon. Thank you so much. Thank you everyone for being here. It's been third time or fourth time that we have been inviting you all, and the reason that we invite you all is कि आप हमारी उमंग, जिस उमंग से हम जो भी शो बनाते हैं, वो आप दुनिया को बताओ कि हमने क्या बनाया है, जो हमारी टीवी पे आकर देखें. सो आई होप पिछली हर बार की तरह हमारी वो उमंग इस बार भी डेफिनेटली पूरी होगी. ऑर्गो ने, पिछली बारों में हिरेन ने, सब ने बताया कि हमारी करेज, द करेज दैट वी हैव इज डिराइव बिकॉज वी बिलीव इन क्रिएटिंग गुड कंटेंट, एंड इफ वी हैव गुड कंटेंट विल डेफिनेटली हैव व्यूअर्स. सो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दिस कंटेंट दैट वी हैव क्रिएटेड, जो भी हमने कहानी इस बार बुनी है, वो हमारी ऑडियंस को, और जो आज है और जो आने वाली है, जिनको आप लिख के बताओगे कि शिमारू में जाकर ये कंटेंट देखिए, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. एंड वी वुड रिक्वेस्ट, बी इट प्रिंट मीडिया, बी इट डिजिटल मीडिया, बी इट any media that you all can, even your personal WhatsApp messages, I'll be glad if you all can really mention everywhere that they have something very special, very surprising to see on 28th. 28th को हर इंसान शिमारू उमंग आकर देखे शाम को, और we'll be glad if that happens. Thank you so much for everyone. Thank you so much for coming down all the way here. Thank you so much. Let's hear it, please. A huge round of applause. I think बहुत बेसब्री से सबको इंतजार है इस महल. Oh
gorgeous Sunaina. With the most khoobsurat Naina presenting Sunaina. I'm sure you cannot have enough of the beauty and the innocence in her eyes, the angelic Sunaina. और इसी के साथ अब किससे मिलने का समय आ गया है? On popular demand, let's have the Dakini Chandralekha. To complete this picture perfect moment here for us. So proud to present to you Adiraj, Himanshu Soni, Sunaina, Neha Harsora and Chandralekha. Ridhima Tiwari, zordar taliyan, and cameras can go click, click, click because wow, what a picture perfect moment this is for us. आप तीनों एक बार एकदम अपनी करीब फैमिली की तरह करीब आ जाए for a perfect photo op. And y'all can get some pictures. Then we're going to request our senior management to please join because this is their vision, this is their baby and they've put it beautifully together. और ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते. ये लोग डे नाइट शिफ्ट्स करते हैं. आज हमें मिले हैं तो हम इनके साथ ढेर सारी फोटोज लेंगे, right? With that, I'd like to request first up with a huge round of applause our CEO, Shemaru Entertainment, Hiren Gara, to please come up on stage. May I also request Orgo Sandeep to join them. And also our business head, Hindi GEC cluster, Subhash Somani. Of course, not without Rashmi Sharma, the producer. With that, it's a full house and a perfect moment for our media to get the photo opportunity. Congratulations, what a proud moment as this show sees the light of day. And just a couple of days, 6 days left, countdown बढ़ते जा रहा है, दिलों की धड़कनें बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं और एक्साइटमेंट भी ऑडियंस में बढ़ती जा रही है. Thank you so much to all our senior management. Thank you. Sorry for that extra calorie burn workout and calling you back on stage. हमारा महल बहुत बड़ा है, इसमें सब आराम से समा जाएंगे, आप बस फोटोज लेते रहिए. Kanak and Mandakini, on popular request, can we have you on stage, please? The beautiful Kanak and Mandakini.
Thank you so much. Now I request Thank you to all our senior management. I request Kanak Mandakini रह जाइए जरा. अधिराज सुनैना चंद्रलेखा आपको इतनी जल्दी से नहीं जाने देंगे. And the ladies man Adhiraj might as well be in the center. वैसे अगर कोई कैरेक्टर बाकी है तो मैं भी ऑडिशन में घुस जाती हूँ बीच में. गेटअप में तो ऑलरेडी हूँ. इन योर थीम. Thank you so much, Kanak and Mandakini. Thank you. I request Adhiraj, Sunaina and Chandralekha to please get yourselves seated on stage. Thank you, Kanak. Thank you, Mandakini. Let's hear it for the beautiful ladies. कहूँगा कि आज हमारा जो शो है राजमहल, उसका प्रोमो देखा आपने और सबने ही बहुत अच्छा काम किया है. और रही बात अधिराज की, तो कहा जाता है कि एक माँ बेटे का प्रेम ऐसा प्रेम होता है जिसमें बेटा सब कुछ करता है, मस्ती मजाक. तो अधिराज का वैसा ही कनेक्शन है अपनी माँ के साथ. जो आपने इमोशनल बात बोली, वो माँ की हर बात मानता है, जो माँ कहती है वही करता है. तो अभी तक जितना मैंने अधिराज को समझा है, वो माँ का दुलारा है, तो उसको अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी. तो वो मान रहा है. बाकी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और ये सब, तो अभी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो आपको लेके आना ही पड़ता है इंडस्ट्री में. कभी भी कैसा भी शो आ सकता है, कहीं से भी कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सर आए थे, पवन सर, उन्होंने पहला मेरा शॉट मुझे अभी याद है जो प्रोमो में था. मैं सेट पे पहुंचा और सीधा एक पॉन्ड था बहुत बड़ा, उसमें घोड़ा आधा डूबा हुआ था. उन्होंने बोला इस पे बैठ के सीधा का आपको गैलप में आना है. मैं बोला अभी मैं सुबह 7 के शूट में आया हूँ, सीधा गैलप पानी में. तो इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब. तो और फिर आपको थोड़ी ट्रेनिंग करनी होती है. जब मुझे पता लगा इस तरह का शो है, तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी वापस, और फिर ये आपके सामने अधिराज. Fabulous, fabulous work. मेरा अगला सवाल हमारी सुनैना का है. इतनी एंजेलिक आपके नैना, इतनी सारी खूबसूरती और इतना प्यारा सा कैरेक्टर आपको करने को मिला. ये आपका पहला शो है एज अ लीड, और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ आपने पहले भी काम किया है. सो अ होल मिक्स बैग ऑफ इमोशंस. आर यू राइट नाउ? Very much, I can say. I'm very glad to get this opportunity to work as a lead for Shimaru Umang through Rashmi Sharma Telefilms. And yeah, I have been preparing for this show since a very long time when I got to know that I'm pitched for it. तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर हिंदी में बहुत मेहनत की, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें मैं एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं बोल पाऊँगी. ऐसा बहुत बार हुआ है टेक के टाइम पे कि मैं प्लीज़ बोलना चाह रही हूँ, पर मैं रुक गई क्योंकि मुझे पता नहीं प्लीज़ को मैं हिंदी में क्या बोलूँ. तो बहुत बार रीटेक्स होते हैं उस चीज़ के कारण. इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मेक श्योर किया कि मैं हिंदी के थोड़े शब्द जमा करूँ मेरी वोकेबुलरी में, और इन सब ने मुझे बहुत हेल्प की है ये चीज़ों में. सो या आई कैन से दैट. A lot of hard work goes into creating work of perfection of that degree. हमारी खूबसूरत चंद्रलेखा जी आए और सब आपसे सवाल करने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी सहेली भी हैं, और वो ये है कि नॉट जस्ट योर फर्स्ट नेगेटिव रोल, बट इतना स्ट्रॉन्ग कई बार लोगों को मतलब लाइफ भर नहीं मिलता इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना. तो आई एम श्योर यू आर ओवर द मून, बट बहुत मेहनत और बहुत मेंटली तैयारी की है इसके लिए. जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है. स्ट्रॉन्ग रोल्स पहले भी किए हैं मैंने, लेकिन इस तरह का डिवियस, हीनस, डार्क, एब्सोल्यूट डार्क, इस तरह का जब रोल आता है तो एक एक्टर थ्रिल तो महसूस करता है, पर उसके साथ साथ उसे लगता है कि क्या कर दूं जो एक मौके पे चौका लगा दूं. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट थ्रू Shimaru Umang I am a part of Rajmahal, and Rashmi ma'am, I've worked with her before also, and they've been very very kind to always let me be a part of their projects. And ये रोल जब मुझे नरेट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत
कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब एक एक्टर को अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये वाइट एंड ब्लैक है. वी ऑल हैव अ गुड साइड एंड अ डार्क साइड, बट बहुत हम डार्क साइड को शायद अकेले में महसूस करते हैं, ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते. तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है टू एक्सप्लोर माई डार्क साइड, एंड आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड मैसेज टू पीपल, क्योंकि आप हर एक गाथा उठा लो, अपनी जितने भी पुराने जो हमारे संस्कृति के पुराणों के जो जिसमें भी ये बताया गया है कि where there is good there is evil, so the perfect balance between good and evil makes a very interesting story. And the best part is चंद्रलेखा इतनी unpredictable है. ठीक है, ट्रेलर से टीज़र से आप लोगों ने समझ गए थे, आप लोग ये समझ गए होंगे कि चंद्रलेखा बहुत डार्क है, बहुत क्रूल है, बहुत अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है. शी इज़ ह्यूज, शी इज़ पावरफुल. बट उसके अलावा ये जो प्यारा सा यहाँ पे अधिराज बैठा है, ये जो मेरी सारी बातें मानता है, तो वो इसलिए मानता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, है ना, जी बिल्कुल. बहुत स्वीट हूँ ना. तो यही चीज़ जो मुझे करने को एक ही शो में मिल रही है, you know, playing absolute dark and playing absolute soft and graceful, ये बहुत ही कम मौका मिलता है. So thank you so much Rashmi ma'am, thank you so much Shimaru Umang. चंद्रलेखा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिटरली अपना इंट्यूटिव टेक ही मैंने हमेशा रखा है. यू नो, आई ऑलवेज, मतलब ऐसी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के आपको डार्क यू नो शोज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली यूनिक, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फॉर्मेट. एंड मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ देख के मैं ऐसा ही करने वाली हूँ. आई हैव literally gone the intuitive way. You know, I'm just following my intuitions, and with great support of my cast, my co-actors are fantastic, my team, my sir, everybody is fantastic on set, and they're helping me perform better every day. And I go with a lot of zing and power and like that on set. तो ये चंद्रलेखा मेरे में ये सब ला रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. और हमें भी आएगा आपको एज चंद्रलेखा देख के. आई थिंक वी आर सुपर एक्साइटेड. दीज पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक सम अमेजिंग एंटरटेनमेंट व्हिच इज गोना हैव अस टोटली ग्रिप टू आवर सीट्स. कुछ और सवाल अब हमारी मीडिया की तरफ से हो जाएं. कौन है? मेरे को कोई नहीं दिख रहा. कोई तो हाथ दिखा के शक्ल, हाँ जी. कोई तो शक्ल दिखा दो please. प्लीज. शक्ल कैसे दिखे? नहीं दिख रही है किसी की. Okay, this is Mukesh here from Tele Chakkar. Hi Mukesh. guys. हाय मुकेश. क्वेश्चन बस इतना है कि ऐसे टाइप के शोज़ का तो अब जैसे चलन ही हो चुका है. यू नो, ऑल भी अलग अलग चैनल्स पे ऐसे टाइप के शोज़ आ रहे हैं. नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट स्टिल जैसे पिशाचनी आ गई है, और इसके पहले भी शोज़ थे कि दो लोग प्यार करते हैं और तीसरा कोई उसमें इंटरप्ट करता है, और वो भी यू नो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ. तो क्या नया कैटर होने वाला है इस शो के ज़रिए ऑडियंस को, ये आप हमें बताएं. मैंने शायद जब मैं अपने चंद्रलेखा के बारे में बात करी थी तो मैंने आप ये भी मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और देखने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उस तरह की ऑडियंस है, और भाई पब्लिक सब जानती है, तो इसलिए जो डिमांड में होगा वही बिकेगा ना बॉस. लेकिन एक और चीज़ है, मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये शो बाकी शोज से बहुत अलग और यूनिक फॉर्मेट है, लेकिन उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा ना 28 को. अभी से कैसे बताएंगे, थैंक यू. है ना. एनीवन एल्स? माइक है, हाँ जी. चैतन्य सर को माइक पकड़ाएंगे. Yeah, here. I'm so happy to see. हेलो, Yeah, सॉरी, hi. got Yeah, distracted. yeah, Hi. my name is Chaitanya. Hi, Yeah, Chaitanya ji. Yeah, I want you to share with all of us how easy or difficult was it for you to get into the negative groove. You know, like see, everyone is positive, but ये जो आपका एक dark shade है, when you know डाकिनी का कहर, वो create करना, you know that fear, वो एक खौफ. चैतन्य जी, एक बात बोलूं, हम सब में ना एक वो क्वेश्चन होता है जो पावर को बहुत एंजॉय करता है, करेक्ट ना. वो चेयर ना पावर वाली बड़ी अच्छी लगती है. तो मेंशनिंग द फैक्ट दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग रोल्स, लेकिन ये वाली कुर्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, चंद्रलेखा वाली. सो वी ऑल हैव इट विद इन अस.
वो डार्कनेस बस एक्सप्लोर करने की बात है एज एन एक्टर, बिकॉज यू नो आई फील दैट the more you understand spirituality, the more you understand good, you'll be able to perform or get into the bad zone. So I don't think one has to literally, you know, think of a certain, I get into the groove the moment I wear this dress. There's a certain madness about this character, and the way it's been narrated to me, there's a particular song that I have decided which is the mood of Chandralekha, you know. Now, ironically, I mean, I'm a very spiritual person. So, ironically, it's a tandav. But I, through spirituality, go into the bad zone, which is good enough because I am passing on a message to the people that good always wins. So, here, off screen, it is through good I'm going to the bad. But then when I come back home, I again come back to the good while the tandav, listening to the mantras. So I think every actor has a certain, you know, mantra or whatever to get into the groove. And this is what I do. I listen to a lot of music that gets me in that groove, and I feel a lot of power becoming and, you know, dressing up like this, and I think it's effortless. The way the lines are written, the way the plot is, I don't think it's a lot of mehnat, because 60% mehnat the team has done. So beautifully put. आप अपने कुछ खास एक राज बता देंगे. आई वुड हाँ. रिक्वेस्ट ऑल थ्री ऑफ यू अपने कुछ एक खास जाति का ये नाइंसाफी है. रियल लाइफ एक के, एक राज तो बनता है. रियल लाइफ के राज, रियल लाइफ या के, रियल लाइफ फॉर योर फैंस टू नो. रियल लाइफ के राज तो मतलब तो secret वो होता है. राज राज ही इसलिए होता है कि वो सीक्रेट होता है. बताना नहीं चाहिए. कभी बायोपिक बनाऊंगा तो जरूर बताऊंगा सबको. ऑफ कोर्स राज तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब खुला ही है मीडिया वालों के सामने. इनका जीवन एक खुली किताब है. यस, ओके. यू कैन से दैट. कोई राज है तुम्हारा चंद्रलेखा इससे मिलता जुलता? या आप एक दूसरे के कोई राज बताना चाहेंगे सेट पे, कौन किसका डब्बा लेके भाग अभी जाता तक उतनी गहरी दोस्ती अच्छा. नहीं हुई है. ऐसा- थोड़ी और डे नाइट शिफ्ट्स लगानी पड़ेंगी मैम. नहीं थोड़ी शिफ्ट बहुत closeness बढ़ेगा, डे closeness. नाइट शिफ्ट के चक्कर में ही हम मिल नहीं पाए एक दूसरे से. हाँ, डाकनी मतलब और वो अधिराज अलग ही शूट मिल कर रहे थे और मैं अलग. डबल यूनिट. yeah, no. पर ठीक है, राज की बात हो रही है तो मैं चलो बता ही देती हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी. जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव मुझे बोलते थे यार तू तो मैं उनको मजाक मजाक में बोलती थी मैं डायन हूँ. मुझे पता ही नहीं था मैं एफर्म कर रही हूँ चंद्रलेखा के लिए. मैंने वहां से एफर्म करना शुरू कर दिया था. तो बोलते हैं देख राज महल, दुनिया को पूछो, मुझे पता है डाकनी के सारे राज. दुनिया से बोलो मुझसे आके पूछे, सारे राज पता है डाकनी के. तो या दिस इज द जोक इन माई हाउस एवरी डे. इज लाइक राजमहल, आई नो ऑल द सीक्रेट्स. सो या ये छोटा सा कुछ है, मेरे पे जोक बना दिया है. तुम्हारी बारी अभी. मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर राज नहीं है. मतलब कह सकते हैं कि बहुत सिली साउंड करेगा अभी, जो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं बचपन में उनके वॉलेट से पैसे ले लेके चॉकलेट्स खाया करती थी. आई नो इट्स वेरी सिली. और वो आई chocolate थिंक यहाँ बैठे हुए सबके राज हो गए ये. हाँ. बचपन में अपने पापा के वॉलेट से थोड़े से पैसे ले लेना. इसीलिए तो मतलब हम सब राज नहीं बता सकते, जो बता बेस्ट सकते वो राज बता दिया बताया मैंने. तुमने. बेस्ट वन. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, एक हाथ. शो से रिलेटेड कोई? जी जी यहाँ पर कहाँ पे? आपके लेफ्ट Yes. में, आपके लेफ्ट Okay. हाय हाय. लेफ्ट में. यस यस यस, आई कैन सी यू. जी Yeah. आप तीनों से ही मेरा सवाल है. जी. मैं हूँ प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से. तीनों से ही सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तीनों को डराती हैं, और अगर पावर मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? मैं उम्र को रोकना चाहूंगा. कुछ चंद्रलेखा की आई तरह. थिंक इट्स नॉट अबाउट टीवी इंडस्ट्री. जो मीडिया में एंटरटेनमेंट, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा एज फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे यंग दिखा सकते हो. तो मेरे को लगता है मैं उसको रोकूंगा सबसे पहले. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चंद्रलेखा की भी कुछ ऐसे ही. हाँ, चंद्रलेखा इज 180 years old. कैन यू Yeah, she बिलीव इट? is. आई एम 180. मेरी त्वचा से मेरे उम्र का पता Yeah. नहीं चलता. हाँ, 0 हटा दो, 18.
love Ooh, it. compliments. क्या बात है। हिमांशु लेकिन डिजिटल वहीं पर लेफ्ट में आपके Same. तो लेकिन डिजिटल पर तो अब वो एज वाली बात नहीं रही, सबको सब तरीके के रोल मिल रहे हैं, तो आपको क्यों course. टेलीविजन पर अपनी एज को रोकना है? नहीं ऐसा नहीं, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या करोगे, बट एज क्या होता है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर तरीके के व्यक्ति या इंसान या फिर सबके लिए रोल है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है चाहे वो 80 साल का इंसान है। तो ये इस इंडस्ट्री की अच्छी बात है कि ये सबको काम देता है, इसमें भेदभाव नहीं है, जो जिस लुक में परफेक्ट बैठता है हम उसमें कास्ट कर लिया जाता है वो। और उसके अलावा उसके पीछे काम करने वाले लोग, उसमें भी आपको हर तरीके की एज ग्रुप के लोग दिखेंगे, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। बट एज एन एक्टर मैं अगर अपनी बात करूँ तो हर किसी को ये पसंद होता है कि वो एक पर्टिकुलर एज के बीच में ही दिखे, काफ़ी समय तक दिखे, ताकि वो अच्छे अच्छे रोल करता रहे। लेकिन ऊपर वाला बहुत बलवान है ना, एक टाइम के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। थैंक यू। Hi Ridhima, yeah, center, yeah. So since you are playing Dakini, so आपके अंदर ऐसी कौन सी डार्क चीज़ है जो आप बताना चाहोगे, like रिवील कुछ करना चाहोगे तो? I like to be powerful, but then most of us, I think, have that. बाकी डार्क चीज़ें जानकर आप क्या करोगी, वो डार्क नहीं रहेंगी ना फिर। मतलब आई एम वर्किंग ऑन दोज, एवरीबडी हैज़ अ डार्क साइड, वी ऑल वर्क ऑन दोज, मेरी भी हैं कुछ, राज ही रहने दो, राजमहल। इंडस्ट्री के कुछ राज खोलना चाहोगे अबाउट द डार्क साइड? इंडस्ट्री के क्यों, राजमहल के ही खोलते हैं ना, है ना? Monday to वैसे Saturday. इंडस्ट्री के 8:30. राज आपको ज़्यादा पता होंगे। हाँ, हमें बता हम स्क्रिप्ट दीजिएगा। में रहते हैं, आजकल न्यूज़ वगैरह भी नहीं देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। All right, is that good? Any last question? हेलो, शिल्पा हियर फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। वेल रिधिमा, आपके लिए मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपको इस अंदाज में हमने टेलीविज़न पर कभी नहीं देखा है, काफ़ी एक अलग अंदाज है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी किस तरह से आपकी एक कैमरा पे उस किरदार को एग्जीक्यूट करना ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए आपके उस डार्कर साइड को, क्या कुछ है क्योंकि जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है बिग, तो उस तरह से भी वो कैमरा पर दिख पाए उसके। और जिस तरह से पहले मैं कहना चाहूँगी कि कैमरा वर्क, डायरेक्शन वर्क काफ़ी अमेजिंग रहा, प्रोमो भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आपकी क्या कुछ तैयारी, अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ चैलेंजेस अगर आपको आए होंगे इस चैलेंजेस थे जी, चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि चंद्रलेखा के शेड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं इन अमिट्स अदर कैरेक्टर्स। जब वो अपने आप में होती है, शी इज़ टू पावरफुल, वो जानती है कि उसे अपना मकसद हासिल करना है, या फिर उसका मकसद है दैट शी wants to not age ever, she wants timeless beauty. I'm sure all of us are Dakinis here, all of you want timeless beauties, want timeless beauty, but the fact is, like मैंने बताया पहले भी कि हमारी जो टीम है 60 से 70% काम वहीं हो गया था। तो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ये लुक है, ऑडियंस को मिस्ट्री और फैंटेसी बहुत पसंद है, विच इज़ नॉट रियल। हम लोग रियल में बहुत जी लेते हैं, तो पीपल लव टू लिव इन ड्रीम्स, पीपल लव एंटरटेनमेंट। राजमहल इज एंटरटेनमेंट, राजमहल इज मिस्ट्री, राजमहल इज ड्रामा, राजमहल इज ब्यूटी, राजमहल इज इनोसेंस, लव। सो I feel that all the emotions and the fact that आपने कहा कि मैं ऐसे कभी दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी? इसलिए नहीं दिखी, मेरे को चंद्रलेखा प्ले करना था। Wow. So preparation for this has been right from the start. मैंने कुछ as such effort लेके कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सोचते हो तो बहुत worked up लगते हो। तो I came and I wore this dress and I just kind of flew with whatever was happening. मुझे जो निर्देशन कर रहे थे मेरा शुरुआत में जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा 30% काम कर दिया, तो मैं तो सिर्फ 10% ही कर रही हूँ। सो it's very easy when you have the correct people around you and the correct artists around you. तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया है to play somebody and a role which I have never done before. तो अंदर बहुत आग है बॉस, बहुत स्क्रीन पे आग लगने वाली है। ऑलराइट, अब हम हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें सुनी हमने, और अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा को स्क्रीन पे सुना, लेकिन एक चीज रह गई है। पूजा जी, एक मिनट, सो सॉरी।
हाय नेहा, विशाल फ्रॉम आज तक। कैसे हैं आप? हाय पहली बात तो विशाल। आई एम गुड। नेहा, एक दो चीज़ जाननी थी आपसे। पहली बात तो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा राज जो आज आप हमारे सामने बोलना चाहे। दूसरी बात कि राजमहल, जैसे कहते हैं ना कि बचपन के भूतों और कहानियाँ की एक कहानी की तरह होती है, तो आपके बचपन में कोई एक कहानी आपको किसी ने सुनाया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, प्लीज़। भूत की कहानी तो मैंने बहुत सुनी, मेरे दादाजी से, पापा से, मम्मी से भी। वैसे पर्टिकुलरली कोई माइंड में अभी आ नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ 2 मिनट। वैसे मैंने बहुत शोज़ देखे थे भूत के, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, पर डर भी उतना ही लगता था जब मैं देखती थी। और आज मैं वही शो कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। तो बच्चे देखेंगे अपना शो। हाँ, सो भूत की कहानी में मैंने हमारे जो लोकेलिटी में मैं रहती थी, उसी लोकेलिटी के बारे में मैंने सुसाइड स्टोरी सुनी थी, जिसमें मैंने सुना था कि एक आई डोंट नो हाउ टू नरेट इट, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ स्कैरी फॉर मी। Okay, so there was this one suicide story which happened in our building, and I got to know that people are hearing screaming voices और ये वो। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहाँ सुना है, like you are not there, तो ठीक है बातें हो रही है। But then somebody close to me heard that, and then the way they portrayed it to me, उसके बाद तब से मैं believe करती हूँ कि if there is good energy, there is bad energy। और आज और राज, I don't think I have anything as such to share with you। राज में मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे चुराए थे मम्मी से। राज नहीं, नो सॉरी। थैंक यू सो मच। तो मैं कह रही थी कि हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें हमने सुनी और अधिराज सुनैना चंद्रलेखा को स्क्रीन पर देखा, लेकिन अब अधिराज सुनैना और चंद्रलेखा की आवाज़ में एक बार आप इन सब को प्यार से बोलिए कि 28 नवंबर मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे से राजमहल में आए अपने अपने बतौर कैरेक्टर। मुझे याद हो गया कि आप मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे आ रहे, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना है। बट एज कैरेक्टर्स वी वांट टू सी देम इन देयर कैरेक्टर्स, राइट, लाइव। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद यू अधिराज। ओके, तो 28 नवंबर से हम आप सबके घरों में आ रहे हैं हमारे राजमहल को लेकर के। शिमारू उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, देखना ना भूलिए। अधिराज। सुनैना, अपने अंदाज में कुछ प्यार से बुलाइए इन्हें अपने राजमहल में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आप प्लीज़ हमारा शो राजमहल देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM। हाँ, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM ओनली ऑन शिमारू उमंग। सुनैना। एंड लेट्स हैव चंद्रलेखा। ऑलरेडी कैरेक्टर में है, कुछ भी। 28 नवंबर से मैं चंद्रलेखा आ रही हूँ आप सभी से मिलने। 8:30 बजे तैयार रहिएगा। अपने काले जादू से आपको मोह लूँगी। मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर। वाओ, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी कास्ट और हमारे मेकर्स के लिए हो जाए, और एक बार तालियां आप सबके लिए फॉर मेकिंग दिस सच अ फैंटास्टिक इवनिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू राजमहल। हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 नवंबर का, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर और इंटरव्यूज और बाइट्स के लिए हम हैं, राइट? थोड़ा पीछे ना यार, पीछे जाओ। नहीं आपको थैंक यू सर। साथ में आ जाइए मैम। हाँ थोड़ा सा हेलो, चलो हेलो, ओके। अरे ये क्या ना
मेरा कोई ये ठीक कर देगा? कोई है इधर? सॉरी, आप क्या कर रहे हो? कोई है इधर? वो कुड जस्ट पुल इट स्ट्रेट? कोई नहीं है? कोई ड्रेस में ओके मेकअप दादा ठीक है, पिक्चर्स ले रहे हो? वीडियो वीडियो घुमाओ ना ऐसे, घुमाओ ना ऐसे ऐसा ऐसा दोनों एंड्स पकड़। ऐसा अभी एक्शन और ऊपर डाकिनी खाली डाकिनी आ गई। Thank you for coming. Thank you. And please do spread the word.